good evening and a warm welcome to join me. In fact, to soak in Guru Bhakti, in understanding Guru Tattva, in becoming the disciple that any Guru would love to have. It's a process and it's information and developing those qualities in us. So, let me give you a little background of this Guru Bhakti Yoga and how this can help a disciple, this can help a follower or a devotee to achieve that the ideal disciplehood that can make any guru a proud or divinity very proud. So, this Guru Bhakti Yoga is described by Swami Shivananda Saraswati of Rishikesh. Uh, the connection with us is very different. We all know Govind Giri Swamiji to be Guruji's Guru, Diksha Guru and Kundalini Gyan Yogi that he is. In his lineage, yes, his strong connection with Sai Baba makes Sai Baba his Sadguru, but while he was on his journey of self-discovery, I will give you a little story about our beloved Swamiji. Sometime if we happen to really meet in person, there is a movie made on Swamiji's life and it's worth watching for many reasons. In this 21st century, can somebody take so much of an effort to achieve such a great height in spiritualism? If no, those who I met, I must say that we all were really lucky to have seen, met, spent time with such an high level soul. So it so happened that Swamiji lost his father very early, and that sort of triggered his inward journey. Like I said, pain, never consider pain to be a problem in your life. Pain is awakening, pain is opening of eyes, pain is realizing that we are in drama. It's like somebody slaps you out of the deep slumber that we are in. So, such painful moments are needed even to the enlightened souls to wake up to the reality. So pain has immense importance in anybody's life. It's especially in the life of a sadhak. So he must be around 12, 13-year-old that time, and suddenly one morning he just left home. Though he described that the reason why he left home was not to find God, but to meet God and ask for money. It was so innocent of him at that age, because he said, my father was a very pious person. He would say that. And any atithi coming home should be fed. And daily, so many sannyasis would visit his house, so many passing by people would visit his house, and his mother would cook a meal for all these people and nobody would go hungry. And that's what his father used to do, and both father and mother were very pious people. So when suddenly he lost his father, they lost a person who was a breadwinner, who was earning member, and mother was somehow pulling that pious work in just a minute, let somebody can hear you. I hope now you can hear me. I hope you heard whatever I have given the introduction. I'll just brief you all. Those who have just joined, I'll just brief you all. Like I said, you are most welcome to join me and soak into the Guru Bhakti. Guru Bhakti is the essence of Guru-disciple relationship, and it sort of guides the disciple to become the ideal disciple that any guru would like to have in his life as a disciple. So in the same context,
I was giving you information. This Guru Bhakti Yoga is described and very well documented by disciples of Swami Sivananda Saraswati of Rishikesh. He's a very, very towering spiritual entity that Bharat has seen, India has seen. Now he's no more, but Divine Life Society is run by his disciple. So, what is the connection that we have with Swami Sivananda? And that's why I am explaining our connection with Swami Sivananda is through our beloved Swamiji Govindagiri. In earlier years of his self-quest, Swamiji happened to meet Swami Sivananda. He was his first Diksha Guru. He was his first spiritual Guru. And from there, his journey really took off, and he achieved whatever he had to achieve. So, one fine day after he lost his father, Swamiji happened to leave home in search of God, not for self-realization, but he wanted lot of money from God so that his mother and him can continue feeding people. That's what his father used to do. And this small young boy happened to leave everything, and he said, I just walked out of the house wherever my feet would take me. And he said, I wanted to go to where he wanted to go to Kashi, I think. But he happened to reach Calcutta. There he met the famous magician, Sarkar. I'm not recollecting his name, but Senior Sarkar, the magician, who was very famous at that time. And he stayed with him. Such young boy, when magician P.C. Sarkar, yeah, now I got the name. P.C. Sarkar encountered this boy. He asked, what are you doing here? You don't even know the language, because Swamiji belonged to Andhra. And all he could speak was Telugu, no other language. And he happened to just board a train which took him to Calcutta. He wanted to go to Varanasi. That's what he thought, ki God resides at Varanasi. The Shiva, that's what he thought, the innocence of the child. So P.C. Sarkar asked him, what are you looking for? He said, I want to see God, and you can do miracles, so help me meet God. So he said, I can't help you meet God because I don't know where he is, but you can stay with me for some time, and till I can guide you. So like that, his journey went on, and ultimately he reached Rishikesh. And there, young boy, he must be 17, not even 17, he must be hardly 13, 14-year-old. And he started doing all the chores in the ashram, and doing seva of his guru. Whatever, he could press his legs, fan him while sleeping, and such innocence and purity he had that Sivananda got very, very pleased. It was a heart-touching moment for him to see the devotion of this young child who doesn't know about any yoga, any scripture, nothing. And that's when one fine day early in the morning, Shivananda initiated this young Govinda into his lineage and gave him Guru Mantra in his ears and told him, keep chanting this mantra, and you will find what you are looking for. He continued to stay there for few years. Then Shivananda said, it's not mandatory to stay with me. You can go anywhere and do your sadhana. And that's how Swamiji's journey started. So basically, Swami Sivananda belongs in our lineage because he was Guru to our Sadguru, Avadhut Govindgiri Swamiji. And that's why when I was looking into the details of Guru Bhakti Yoga, it was so heart-touching, and I thought I must share this with you all. And it's a joy when together we are enjoying Guru Bhakti to such a fine Guru that we have got. Absolutely picture perfect Guru. Like from the scriptures, when I was reading the qualities of a Guru, each and every quality
was fitting Guruji Noshir, like as if it was describing him. So I thought ki let's all come together and get soaked into this Guru Bhakti. Let the Bhakti increase in each heart, and uh, that is what he has described, Swami Shivananda, ki this is one of the most powerful yoga that anybody can practice, the Guru Bhakti Yoga. And then I got thinking, actually, if you see all the self-realized masters, they were ideal disciples first. They won heart of their guru through their bhakti, nothing else. Nothing else. May it be Swami Vivekananda, may it be Swami Paramahansa Yogananda, may it be Yukteswar, may it be Lahari Mahasaya, may it be any guru, any realized master you see, they have won the heart of their guru through pure bhakti and nothing else. Nothing else. And Guru could give whatever he or she had, just because the purity through bhakti has reached to the level where Guru could give everything that he had. And that's why the importance of Guru Bhakti. Even if you don't know any scriptures, even if you don't know how to do puja, dhyan, japa, nothing matters. Because that bhakti will keep purifying your heart and mind. And one fine day, then you will become so pure that Guru can give you whatever you are looking for and he wished to give you. So this is the importance of Guru Bhakti Yoga. So I'll just read through this book that he has written. Sri Gurudev's great utterances about the need for a guru led the aspirant along the path to God realization and of the devotion that the aspirant should have towards his guru. So ये भी फॉर्मली स्वामी शिवानंद ने किताब नहीं लिखी थी. इसको जो जब वो लेक्चर्स देते थे, जब वो ना उपदेश देते थे, तब उनके शिष्य वर्ग ने उसे ना कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट करके रखा और फिर बाद में उसको पब्लिश किया था. तो ये सारे उनके अटरेंसेस है, उनकी कहावतें हैं, एंड विच वॉज स्कैटर्ड ऑल ओवर. क्योंकि जब गुरु बोलता है वो एक साथ ऐसे ही किताब जैसा नहीं बोलता है, वो कहीं किसी दिन थोड़ा बोलेगा, कहीं किसी दिन थोड़ा बोलेगा. तो डिसाइपल्स ओनली हाउ वी कलेक्टेड अमृत, लाइक दैट हिज डिसाइपल्स कलेक्टेड हिज sayings about Guru Bhakti Yoga and compiled them to make a book. You can buy that online and enjoy reading it. But why I thought, because as I read, I can explain the finer points in detail for you. The great disciple of Sri Gurudeva, Sri Swami Satchitananda Ji, private secretary to His Highness Sri Swami Shivananda Ji Maharaj, felt the urge to compile Sri Swamiji's sayings on Guru and Guru Bhakti Yoga into a single volume, and this is the result. So some later Shivananda had written to his disciple Vivek. This is what he is addressing. Dear Vivek, wisdom or knowledge of the self never dawns upon the mind which is filled with greed, anger, lust, jealousy, which is under the control of desires and expectations, and which is devoid of contentment. Wisdom dawns upon only in a pure, calm mind. Therefore, purify your mind and develop serenity. And Guruji time and again is telling us, nothing else matters but purity of your heart and mind, purity of your thoughts and behavior. That's all that matters. It doesn't matter what sadhana you do. Ultimate result, what we are desiring, is purity. At the end of it, only then the real knowledge will descend. In the mind which is free of greed, anger, lust, jealousy, expectations and desires. So slowly we are working towards it, but we have to be watchful. Now this is the glory of Guru Bhakti Yoga in very words of our Sadguru Swami Shivananda Ji. Just as Kirtan Sadhana has been made the special sadhana for Kali Yuga, and now it's not Kali Yuga, but for a period where spirituality, where morality, where piousness of human being goes down, for such time, for quick God vision, attending to Guru's
na lectures, listening to him, and pondering over it, like kirtan and sadhana, it becomes a sadhana by itself. Even so, herein you have the new yoga, a yoga most eminently suitable for this age of doubt and skepticism. I think he has just said the right words, doubt and skepticism. We are living in the world where there is too much of information and too many diverse views expressed, so naturally there will be confusion and doubts raising in everybody's mind. So Guru Bhakti Yoga is the potent yoga for such people who are constantly getting affected with skepticism and with doubt in their mind. It is Guru Bhakti Yoga. दिस योगा इज मार्वलस, इट्स पावर इज ट्रिमेंडस. वो बता रहे हैं कि इस योगा की शक्ति का हमें अंदाजा ही नहीं है, इतनी अद्भुत शक्ति गुरु भक्ति योगा में है. इट इज द योगा पार एक्सीलेंस फॉर दिस एज. इस एज के लिए अगर कोई योगा ना सच में बेहतरीन है या सच में बहुत काम का है तो वो है गुरु भक्ति योगा, which makes God appear here before you in flesh and blood and move with you in this very life. What a beautiful saying. He says, God himself takes the form of a human being, holds your hand as a guru and takes you across the sansara, takes you across the Maya. The hard Rajasic ego is the arch enemy of sadhaka. Rajasic ego meaning ego that comes from information. We are living in the age of information. Everybody is well read. Everybody can quote from various masters and feel that they have a lot of knowledge. Yesterday only I have explained there is a difference between knowledge and information. Information is just like a library of no use. But knowledge is that one book that you follow day to day life, you have realized in your heart. So Rajasic ego comes with achievements, with intelligence, with a collection of information that you have with you, and the only person who can control that ego is the living guru that you will meet and who has even better knowledge than you. Only then that Rajasic ego will bow down in front of him. And that's the importance of having Guru Bhakti Yoga or having a guru in your life. Just as a particular deadly germ can be annihilated only by a certain specific chemical germicide, यानी जैसे एंटीबायोटिक लेते हैं ना, कोई बीमारी का जंतु है उसको मारने के लिए, वैसे ही स्वामी जी बता रहे, स्वामी शिवानंद बता रहे कि इस जग में ऐसे दो खतरनाक जीवाणु रहते हैं, कोरोना भी नहीं है इतना डरावना जितने ये दोनों हैं. कौन से हैं? माया एंड ईगो. अब ये दो खतरनाक जो जीवाणु हमें ग्रसित करते हैं, उनके ऊपर इलाज सिर्फ गुरु भक्ति से ही होता है. वो कहते हैं इट्स पोटेंट माया साइड एंड पोटेंट ईगो साइड. यानी गुरु भक्ति योगा इतना पोटेंट है कि इन दो खतरनाक जीवाणु को वो नष्ट कर सकता है. They become quite powerless and no longer afflict the fortunate soul who saturates himself with the spirit of Guru Bhakti Yoga. ऐसा इंसान जो गुरु के भक्ति में लीन है, न उसको ईगो स्पर्श करेगा न उसको माया स्पर्श करेगी, क्योंकि कोई ना कोई कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर नजर रखे हुए आपको सावधान कर सकता है, आपको सीख दे सकता है, आपको जगा सकता है अगर माया का पर्दा आपके ऊपर आ रहा है, या फिर अगर बढ़ता हुआ ईगो गुरु देख लेता है तो वो डंडा मारता है और आपका ईगो नीचे आ जाता है. इसीलिए एक गुरु का होना और एक एनलाइटेंड गुरु का होना बहुत जरूरी है आज के टाइम, जब राजसिक ईगो इज ऑन हाई, बिकॉज वी रीड अ लॉट एंड वी फील दैट वी हैव नाउ गॉट द नॉलेज विदाउट रियली रियलाइजिंग. सो ऐसे ईगो को तोड़ने के लिए सिर्फ गुरु भक्ति ही काम आती है, क्योंकि आप देखते हो कि गुरु ने क्या पाया है. एक उदाहरण है आपके सामने, तो आपका ईगो कैसे ऊपर जाएगा. जैसे आपने अमृत में भी पढ़ा होगा, गुरुजी ने बोला कि लोगों को आश्चर्य होता है कि मैं महाअवतार बाबा जी को मिल के आया हूँ, मैं उनका शिष्य होना चाहिए, कितना गर्व होना चाहिए. कहते किस बात का गर्व.
मेरे गुरु को जब मैंने देखा, वो पैरागन स्लीपर पहन के दुनिया पे राज कर सकता है, इतनी साधना, इतनी सिद्धियां जिनके पास है, 2000 साल से ज्यादा उम्र है, मृत्युंजय, इच्छा मृत्यु जिन्होंने पाप प्राप्त की हुई है, ऐसे संत को इतना सादा देख के कहते मेरा ईगो तो बैठ ही जाएगा ना, आया भी तो आएगा नहीं, लेकिन ऐसे गुरु को सामने देख के अपना सा इतना सा ईगो कहीं छुप के डर के बैठ जाता है। इसीलिए गुरु भक्ति योगा से श्रेष्ठ आज के जमाने में कोई और योगा नहीं है, ऐसे स्वामी शिवानंद ने बोला है। नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं वो क्या बोलते हैं। ब्लेस्ड इंडीड इज द मैन हु अर्नेस्टली टेक्स टू दिस योगा, for he will obtain crowning success in all other yogas। आपको किसी और योगा की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने गुरु भक्ति योगा अपने लाइफ में आचरण में लाने की कोशिश की तो आप सभी योगा में सिद्ध हो जाओगे, आप सब कुछ प्राप्त कर लोगे। टू हिम विल कम द choicest fruit of perfection in karma, bhakti, dhyana and jnana, which are called the four basic of yogas। कहते एक गुरु भक्ति कर ली, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप से आपको कर्म योगा, ज्ञान योगा, ध्यान योगा, सब योगा का आपको नॉलेज आ जाएगा सिर्फ गुरु भक्ति योगा से। एंड क्वालिफिकेशन फॉर टेकिंग टू दिस योगा इज सिंपल, ट्रायो। 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए गुरु भक्ति योगा में आने के लिए, और वो 3 चीजें सिंसियरिटी, फेथ एंड ओबीडियंस। अब सिंसियरिटी को मुझे हिंदी शब्द नहीं आ रहा है, लेकिन आई थिंक अभी सबको ही सिंसियर क्या होता है, मेरे ख्याल से सिंसियर यानी जो अपने एफर्ट्स में ऑनेस्ट है, ऐसा व्यक्ति। फेथ यानी जिसकी गुरु के ऊपर पूरी श्रद्धा हो, अटूट श्रद्धा हो, और परफेक्ट ओबीडियंस यानी इतना आज्ञाकारी हो कि गुरु ने बोला जान दे तो वो जान देने के लिए तैयार होना चाहिए। हमें हिम्मत नहीं है, लेकिन आते आते आएगी, शायद उस लेवल तक की भक्ति हम में भी आ जाएगी जो गुरु की आज्ञा यानी ब्रह्म वाक्य हो जाएगा हमारे लिए, और मन से, दिखावे से नहीं, क्योंकि ये गुरु पढ़ सकता है। आप कितना भी उसके सामने झुक झुक के रहो, लेकिन अगर ईगो है तो वो देख सकता है। अगर कितना भी आप ओबीडियंट दिखाने की कोशिश करो, लेकिन अंदर आपका मन विरोध कर रहा है, तो वो देख सकता है। तो थोड़ी प्योरिटी लगती है, लेकिन मेरे ख्याल से कोशिश करते करते ही हम लोग बेहतर बनेंगे। तो शुरुआत में ही अगर इतनी क्वालिटीज नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हम शुरुआत तो कर ही सकते हैं। बी सिंसियर इन योर एस्पिरेशन फॉर परफेक्शन, बी नॉट वेग और हाफ हार्टेड। आप जो भी कोशिश गुरु के सानिध्य में या गुरु के अंडर कर रहे हैं, तो वो प्रामाणिक तरीके से आपको करना है, आपको सिंसियरली करना है। Do not allow even so much as a shadow of doubt to approach you। इतना सा भी डाउट नहीं आना चाहिए अगर आपको सच में गुरु भक्ति में एंटर करना है तो। When once you have reposed absolute faith in him, then know that what he instructs you is indeed for your highest good। और बहुत लोगों को लगता है कि मैं क्यों गुरु के ऊपर विश्वास करूं। एक ही लाइन से आपको पता चल जाएगा कि उसको क्या चाहिए आपसे, क्यों वो गलत सलाह देगा, क्यों वो आपको उल्टा सुल्टा बताएगा, उसको क्या चाहिए आपसे। इनफैक्ट आपको ही चाहिए उससे सब कुछ, वो तो देने के लिए बैठा है। निस्वार्थ देने वाला सिर्फ एक गुरु ही है, जो उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए रहता है। इसीलिए अगर आपने गुरु से कोई एडवाइस ली है या कुछ सलाह मांगी है, तो उसका पालन 100% करना चाहिए, स्पेशली आध्यात्मिक सलाह। बाकी की सलाह ठीक है, आप थोड़ा और चर्चा कर सकते हैं गुरु से, लेकिन वहां पे भी डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो अपनी बेस्ट कैपेसिटी से आपको मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहा है। तो अपने मन से वो डाउट हटा दीजिए कि उन्होंने दी हुई सलाह लागू होगी कि नहीं, या फिर इसका मुझे फायदा होगा कि नहीं, जरा भी डाउट नहीं आना चाहिए। Follow his teachings to the letter. Be earnest in doing thus, and take my word, you will attain perfection। I assure you emphatically। So, such a profound importance Guru Bhakti Yoga has, and 3 चीजें, sincerity, faith and complete obedience, ये आपको याद रखना है।
ऐसे उन्होंने एक शिष्य को मार्गदर्शन करते हुए बोला, ब्लेस्ड एस्पिरेंट, डू नॉट आर्ग्यू, यू विल नॉट गेन एनीथिंग। आप वाद विवाद करके क्या पा लेते हो, कुछ नहीं मिलेगा। सिट बिफोर योर स्पिरिचुअल परसेप्टर और एनी महात्मा क्वाइटली। किसी भी महात्मा के सामने अगर बैठे हैं तो वाद विवाद ना कीजिए, अपना ज्ञान झाड़ने की कोशिश ना कीजिए। उसने सब कुछ पा लिया है बिना पढ़े। जैसे स्वामी जी का उदाहरण है, वो 13 साल के थे तब चले गए थे, स्कूल भी अटेंड नहीं किया, लेकिन अंदर सारे वेद, सारे ग्रंथ, सारे ना लैंग्वेजेस, सब कुछ ज्ञान था। तो अपने इतने से ज्ञान का प्रदर्शन गुरु के सामने कभी ना कीजिए, कभी ना कीजिए। इससे अच्छा है साइलेंटली उसके सामने ध्यान कीजिए। लेट द सोल स्पीक टू सोल। कितना सुंदर वाक्य है। बस गुरु के सामने बैठ जाइए, आंखें मूंद के अपनी आत्मा से उनकी आत्मा तक बातचीत होने दीजिए। जो भी मिलेगा सब कुछ वहीं पे मिलेगा। ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड बाय देमसेल्व्स। अपने आप से सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। यू विल हैव गुड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। You will experience ineffable peace and thrill of joy in your heart. This is the real way of attaining goal of life. Become a practical yogi. I think गुरु जी का बहुत सारा ज्ञान इसी तरह से ही है, प्रैक्टिकल योगी। जो भी सीखा है अपने व्यवहार में लाता है, अपने लाइफ में अप्लाई करता है, ऐसा योगी बनना है। सिर्फ दिमाग का योगी कुछ फर्क नहीं उससे पड़ेगा। सो दिमाग में इंफॉर्मेशन मत डालिए, ज्यादा प्रैक्टिस में लाइए। तो इस तरह से उन्होंने ये गाइडेंस दिया है। एक और बहुत पावरफुल गाइडेंस है, बिफोर आई टच द प्रॉपर गुरु भक्ति योगा। उन्होंने किसी को ऐसे लेटर लिखा है। महारानी स्वर्णलता, शायद कोई महारानी थी जो स्वामी शिवानंद की डिसाइपल थी, तो उनके लिए ये लेटर लिखा है। ये 1 दिसंबर 1942 का लेटर है। फ्रॉम वन डॉक्टर यू गेट प्रिस्क्रिप्शन। सपोज आप बीमार है, आपको कुछ बीमारी है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। आप अगर एक डॉक्टर के पास गए तो वो दवाइयां लिख के देगा, आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा। आपने 2 डॉक्टर्स को कंसल्ट किया तो ठीक है, कंसल्टेशन हो गया, थोड़ा और आपको तसल्ली हो गई। बट 3 doctors, you consult 3 doctors and you get your own cremation. यानी too many cooks spoil the broth. बहुत ज्यादा लोगों से आप सलाह मांगेंगे तो आपका तो हो गया, टाइटाई फिश बोल देती हूँ, राम नाम सत्य तो नहीं होगा, लेकिन सत्यानाश जरूर हो जाएगा। इवन सो इफ यू हैव मेनी गुरुज, यू विल बी बिल बिल्डर। आई थिंक ये आज के जमाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना एक्सपोजर है, इतने लोग अट्रैक्ट करते, हर कोई अपने हिसाब से बहुत बढ़िया ज्ञान रखता है, बहुत बढ़िया मेथड सिखाता है, आज ये बोलेगा कल वो बोलेगा। यू विल बी बिल बिल्डर। आप अचंभित रह जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आप ना कंफ्यूज हो जाओगे। यू विल बी एट लॉस टू नो व्हाट टू डू। आपको समझ में नहीं आएगा। आप 4 गुरु से सीख रहे हो, 4 लोगों को फॉलो कर रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको कुछ फायदा नहीं होगा। वन गुरु विल टेल यू डू सोहम जपा, अनदर विल टेल यू डू जपा ऑफ श्री राम, थर्ड गुरु विल टेल यू हियर अनाहत साउंड, यू विल बी पजल्ड। सो स्टिक टू वन गुरु एंड फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। एक ही गुरु के साथ रहिए और पूरा समर्पण से उसके साथ रहिए। चंचल मन अच्छा नहीं होता है, और जब तक कि आप एक लेवल तक का पा नहीं लेते, दूसरी जगह जाके वहां से आधा अधूरा खाना खाने से क्या होगा। आप 10 रेस्टोरेंट में जाओगे, आपका पेट खराब हो जाएगा। इसको गुरुजी ने बहुत अच्छा नाम दिया है, स्पिरिचुअल इंडाइजेशन। कहते हैं आजकल लोग स्पिरिचुअल इंडाइजेशन से परेशान हैं। हर प्लेट में से उठा रहे, हर ना मेथड का प्रैक्टिस कर रहे, सब हौच पौच, फायदा से ज्यादा नुकसान ही होगा। ये क्रिया भी कर रहे हैं, वो योगा भी कर रहे हैं, ये लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, वो मेथड फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। ये इतने पुराने लेटर्स है, इसमें भी स्वामी शिवानंद जी ने यही कहा है कि गुरु एक ही हो। आप फॉलो सबको करो, लेकिन वहां पे भी डेंजर है, मानो एक का ही।
और एक ही जगह अगर समर्पित हो तो वो गुरु को भी पता चलता है तो आपको कुछ देगा। नहीं तो ऐसे अस्थिर लोगों को गुरु भला क्यों दे, क्योंकि आपका स्वभाव जानता है कि आप एक जगह नहीं टिकने वाले। वो अपना टाइम, एनर्जी, अपने मेथड्स क्यों बर्बाद करेगा। तो गुरु भी बहुत ना समझदार होते हैं, उल्लू नहीं बना सकते उनको। तीसरा जो है लेटर, ये लेटर मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि आगे का गुरु भक्ति होगा, इनके कारण आपकी शंकाएं दूर हो जाएंगी तो वो आप अच्छे से समझ सकते हो। Beloved Mahadev, realization cannot come to you as a miracle done by your guru. ये गुरु नहीं देता है रियलाइजेशन, ये कोई मिराकल नहीं है। लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड जीसस, राम तीर्थ हैव ऑल डन साधना, प्रैक्टिस किया है। लॉर्ड कृष्णा आस्क्ड अर्जुन टू डेवलप वैराग्य एंड डू अभ्यास। ही डिड नॉट से टू हिम आई विल गिव यू मुक्ति। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। गुरुजी बोलते मेरे साधना करने से आपको कैसे फायदा हो सकता है। हाँ, मेरी साधना करने से मुझे फायदा होगा, शायद मैं आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर दूं, लेकिन मैं आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं दे सकता। आपके डाउट्स निकाल सकता हूँ, आपको बोल सकता हूँ कि ये चीजें करो, लेकिन करना आपको ही है। गुरु जैसे हम घोड़े आपको पानी तक ले जा सकता है, पानी हमारे मुंह तक ला सकता है, पीना नहीं पीना ये हमारे हाथ में है। और कई बार हमारा आलस और प्रायोरिटीज नहीं है, हमें प्रगति की कोई चाह नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि इससे क्या मिलेगा। पैसे नहीं मिलेंगे साधना करके, शोहरत नहीं मिलेगी साधना करके, सक्सेस नहीं मिलेगी, यश नहीं मिलेगा साधना करके, तो साधना क्यों करनी है। लो ऑन प्रायोरिटी। ऑफिस में ज्यादा काम करते हैं, प्रमोशन चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। अब एक प्लेट में ज्यादा खाना नहीं रख सकते, थोड़ा थोड़ा सा आपको हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन सेल्फ प्रोग्रेस, अपने आत्मा की प्रगति के लिए अगर आपको कोई प्रायोरिटी नहीं है तो कितने भी आप लेक्चर्स पढ़ लो। बहुत लोग हैं, आस्था चैनल दिन भर चलता है लेकिन कुछ नहीं बदलता उनके जीवन में, क्योंकि सिर्फ सुनते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं की तो कोई भी गुरु कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता। महावतार बाबा जी भी आके आपको प्रैक्टिस दे तो भी आपका कुछ नहीं होगा जब तक कि आप कोशिश ना करें। आप वो ना जो स्वाध्याय दिया है, जो अभ्यास दिया है, वो आप पूरे मन से, लगन से ना करें। अब इंट्रोडक्शन टू, एक मिनट, लेट मी चेक द टाइम। ये टाइम है हमारे पास 15-20 मिनट्स मोर, क्योंकि उसके बाद तो जप है और थोड़ा ध्यान ही है, तो आई कैन टेक सम मोर टाइम ऑफ यू। नॉलेज इज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन. It is a process and not being. All processes are movements brought about by an interaction of external stimuli and internal condition. The rise of knowledge in an individual is a mysterious process affected through such an interaction. No doubt, knowledge in its essential nature is universal and does not admit of any process. But by the risk of knowledge, what is meant is not the existence of this transcendental awareness, but the process of manifestation of it in the relative individual. The highest knowledge is called Swarupa Jnana, yani knowledge of self, knowledge of being as such. But the rise of knowledge in Jiva is a relative act of expression of his Swarupa Jnana through the Vritti Jnana. And Vritti Jnana is definitely a spatio-temporal condition of consciousness. थोड़ा हेवी हो रहा है, इसका सिंपल सा आपको ये बताती हूँ कि नॉलेज ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट रिलेशनशिप में एक पढ़ता है, एक समझता है, एक सिखाता है, एक समझता है। इस तरह से नॉलेज का गेन होता है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ नॉलेज है अपने स्वरूप का नॉलेज, अपने खुद का नॉलेज। Vritti Jnana is the same as psychological consciousness, whereas the degree of its intensity, depth and expansiveness. So, हर एक में जो वृत्ति ज्ञान है ना, आज मैं किस लेवल पे हूँ, मेरे आचार विचार, मेरे शुद्धता किस लेवल पे है, ये मुझे मेरे
अंदर ज्ञान, वृत्ति ज्ञान, यानी मेरे वृत्ति का ज्ञान से मुझे पता चलता है। तो हर एक का अपना अपना लेवल होगा। वृत्ति ज्ञान से हमें वो पता चलता है कि हम किस लेवल पे हैं, आध्यात्मिक प्रगति के किस पड़ाव पे है। वृत्ति ज्ञान therefore cannot appear without the relation of the subject to an object. This relation is the coming together of the subjective and objective process in the universe. Every event is a combination of two events or condition, one acting as the subject and other as a object. So हर चीज का ज्ञान देने के लिए एक ज्ञान लेने वाला होता है और एक सब्जेक्ट होता है स्टडी करने का। इसी तरह से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ पे सब्जेक्ट हम खुद है, हम खुद की वृत्ति का, खुद के स्वभाव का अध्ययन करेंगे और उसमें से कुछ नॉलेज हमें प्राप्त हो सकता है। The spiritual aspirant may be considered from his point of view a subjective entity in which spiritual knowledge manifests itself by degrees. So जैसे एक एस्पिरेंट होता है, उसमें वो नॉलेज डिग्री बाय डिग्री आता है। हमारी लेवल जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं वो बदलती रहती है, वो और ऊपर ऊपर उठती रहती है। Now this manifestation of knowledge is really the reflection of the transcendental consciousness through the mind, which gradually increases its transparency by the process of self-discipline and concentration. जैसे विवेकानंद ने कहा है कि कोई नॉलेज आउटसाइड है ही नहीं, सारा नॉलेज अंदर है, लेकिन हमारी बुद्धि के ऊपर जो भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है, जो माया का पर्दा है, हमारी चित्त वृत्ति का पर्दा है, हमारे इम्प्योरिटीज के जो लेयर्स है, इसके कारण ये नॉलेज हमारे अंदर होते हुए भी हमें अवेलेबल नहीं है। सो ये एक स्पिरिचुअल एस्पिरेंट जब कोशिश करता है, कोई साधना करता है, तब जैसे जैसे ये ना ट्रांसपेरेंसी आती है, जैसे जैसे ये शुद्धि होती जाती है, अपने आप से वो नॉलेज उभरना शुरू हो जाता है। वो अपने आप से होता है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, बस साधना करने की जरूरत है। It is the difference in the degree of transparency in the mind that is responsible for the difference that we notice in the degree of intensity of manifestation of knowledge. हम अलग अलग लोगों को अपने अपने लेवल से ही बिहेव करते देखते हैं। सो जितना आपका प्रोग्रेस होगा वो आपके अंदर से वो रिफ्लेक्ट होता है, और इसीलिए शायद हम सब में थोड़ा थोड़ा माइनर माइनर डिफरेंस रहता है और रहेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस जर्नी है, हम सभी लोग इस पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो हर एक का पड़ाव थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट और अलग हो सकता है। As every event in order to take place requires an external agency, the aspirant is in need of a guru to enable the manifestation of knowledge within him. जैसे एक गाइड रहता है, उसके कारण हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसका नॉलेज होता है। इसीलिए एक्सटर्नल गुरु की जरूरत होती है। यहाँ पे बहुत लोग इंटरनल गुरु है ना हमारे साथ, हमारा आत्मा ही हमारा गुरु है, वही हमें बताएगा, ये वो करके बाहर के गुरु को डिनाई करते हैं या फिर उसकी जरूरत नहीं है, ऐसे उनको लगता है। यहाँ पे स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, आप वो सुनिए। The disciple and the guru are two complementary entities or bits of universal process acting on each other in the reciprocal manner. तो गुरु और शिष्य जैसे एक जोड़ी है और एक दूसरे के ऊपर वो प्रभाव डालते हैं, एक साथ काम करते हैं, सब ना जैसे कॉम्बिनेशन की तरह काम करते हैं। That bring about the rise of knowledge in the disciple. ना जैसे एक रिसेप्टिव डिसाइपल मिल गया तो उसके अंदर से वो नॉलेज खिलना शुरू हो जाता है गुरु के संपर्क में आते ही। There cannot be such a knowledge interaction if the psychic condition of the disciple is not well prepared and made ready to fit into the nature of the entry of the consciousness of the guru into it. अगर यहाँ पे अगर डिसाइपल की क्षमता ही नहीं है, उसका माइंड, उसका हृदय अगर तैयार ही नहीं है, तो गुरु कितनी भी कोशिश करे वो उसके अंदर नॉलेज नहीं डाल सकता। मिट्टी तैयार तो हो, उसके ज्ञान के बीज बोने के लिए मिट्टी तैयार तो हो। इसीलिए जो भी डिसाइपल आता है, सभी में गुरु वो अपना ज्ञान नहीं प्रस्थापित कर सकता। हर एक के अंदर का रेजिस्टेंस, हर एक के अंदर के डाउट, हर एक के अंदर की शंकाएं, इतना सारे वो वीड निकालनी पड़ती है उसे। एक हाथ दो रेडी आते हैं
बाकी सबके ऊपर गुरु को बहुत काम करना पड़ता है, और तब जाके वो कुछ वहां पे बोल सकता है, कुछ अपना दे सकता है. No interaction of any kind can take place anywhere unless two complementary phases of universal process come together. वो interaction, वो reaction होने के लिए दोनों का एक साथ होना बहुत जरूरी है, वो संपर्क होना बहुत जरूरी है. मानसिक नहीं, थोड़ा सा इनिशियली फिजिकल इंटरेक्शन भी होना जरूरी है, उसके बाद फिर मानसिक लिंक बन जाती है. लेकिन दूर से ही आप किसी को गुरु मान के बैठे हो तो वो नहीं चलता है. That knowledge can arise of its own accord from within by self-analysis, and that an external guru is not necessary at all is not a universally acceptable statement. इतना स्पष्ट स्वामी जी ने लिखा है कि बहुत लोग ऐसे बोलते कि नॉलेज है मेरे अंदर ही है, वो आ जाएगा बाहर, मुझे एक्सटर्नल गुरु की जरूरत नहीं है. स्वामी जी बोलते इतना इजी नहीं है, ये बहुत बहुत ही कठिन है. History has shown that the educational process is in great need of the intense activity of teachers in any branch of learning. बिना किसी टीचर के कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता. आप जंगली रहोगे, आप बिल्कुल प्रिमिटिव रहोगे, आपको एबीसी भी कहीं नहीं. माँ से हम सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, सिंपल सिंपल सब्जेक्ट के लिए भी आपको कोई कोई बताना पड़ता है, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. तो फिर आत्मज्ञान जितने कठिन विषय में आप अपने आप से उतर रहे हो, आपको कहाँ जाना है ये भी मालूम नहीं है, कहाँ ना क्या हो रहा है इसका आकलन भी आपसे नहीं हो पाएगा. तो ये एक ईगो ही रहता है जो आपको बोलता है कि नहीं, ज्ञान तो मेरे अंदर है, मैं अपने आप से पालूंगा. जबकि आज तक की हर चीज हमने दूसरों से सीखी है. इफ नॉलेज can naturally rise in everyone without any aid whatsoever, there would be no need for school, colleges, universities in the world. क्यों चाहिए? सब नॉलेज अंदर ही है ना, निकाल लो. नहीं, लोग आज भी गुरु को डिनाई करते हैं, किताबों में एक नॉलेज ढूंढते हैं. नॉलेज किताब में होता, भगवान दो चार किताबें ना फेंक देता, एनलाइटन बन जाते. गीता है, कितने सालों, कितने लोग एनलाइटेंड हो गए. इंफॉर्मेशन बहुत आ गया, पूरी गीता मुखोद्गत है, सारे अध्याय धड़ 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 बोल देंगे, अर्थ भी बता देंगे. लेकिन एनलाइटनमेंट यानी आत्म साक्षात्कार हुआ है? आत्म स्वरूप का ज्ञान हुआ है? नहीं. इवन दोज हु ट्राई टू प्रोफाउंड दिस misleading competency of individual who can teachers are people who have been trained by other teachers. So ये थ्योरी जो बताते हैं कि ज्ञान है तो मेरे अंदर से आएगा, आज तक उन्होंने सारा ज्ञान दूसरों से पाया है. तो इन खोखली बातों पे स्वामी जी ने बहुत कड़ा वार किया है, जो गलत फहमियां पैदा करते कि गुरु नहीं चाहिए. Yes, the effort on the part of disciple or student is must, but need of the guru is also must. There is no reaction between the forces of different planes of consciousness, though in the case of action of the guru, it is possible that he may focus his higher consciousness through the medium of the lesser plane in which disciple is placed, in order to bring about the required transformation in the mind of the latter. गुरु क्या क्या नहीं कर सकता. अपनी लेवल से वो नीचे उतर के हमारी लेवल पे आके वो हमारे माइंड में थोड़ा सा काम कर सकता है, मैं अच्छे से समझे. The process of the action of the Guru's consciousness is called, or the descent of movement of the power of the Guru in the disciple. यानी एक दीक्षा, जो गुरु से शक्ति आती है वो डिसाइपल के अंदर जाती है, तो अपना नॉलेज, अपनी कुछ ना अंदर की पावर गुरु अपने शिष्य को देता है, ताकि उसका कोई कुछ जागृत होना शुरू हो जाए, वो खिलना शुरू हो जाए, और फिर आगे जाके गुरु और हेल्प कर सकता है. There are cases where gurus have even done sadhana for the evolution of disciples by bringing about the purification of the mind of the disciple through direct intervention of a higher consciousness. कभी कभी ये भी देखा गया है कि गुरु साधना करता है अपने डिसाइपल्स के लिए,
ताकि उनको फायदा हो, ताकि उनको उठा सके, थोड़ा तो ऊपर ला सके। तो ऐसे इम्पोर्टेंस जिसका है उस गुरु को ना उसको समझना, उसको ना उसको किस तरह से अप्रोच होना है और उसको किस तरह से ना देखना है, ये सेंस है। देयर आर पीपल हु we can find out good and evil, right and wrong, truth and falsehood by consulting our conscience. There is no need for an external guru. It should be remembered that the conscience will not help a person in attaining to correct understanding unless he has reached the height of purity and desirelessness. आपकी जितनी लेवल है, आपका कंसाइंस उसी लेवल से गाइड करेगा। इसीलिए कभी कभी गुरुजी बोलते हैं कि ना आप लोग चर्चा कर रहे हो बड़े बड़े लोगों के लिखाई पे, लेकिन आपको आपकी लेवल का ही समझ में आएगा। जब आपकी लेवल ऊपर उठेगी, उसी में से अलग और एडवांस अर्थ आपको निकल के सामने आएगा। तो अगर आप अपने अंदर के आत्मा के ऊपर इतना निर्भर रहना चाहते हैं, कंसाइंस के ऊपर, लेकिन वो आत्मा, वो कंसाइंस भी भ्रम में है अभी इतना, वो कहाँ से आपको सही सलाह दे सकता है, कहाँ से आपको सेल्फ नॉलेज तक का गाइडेंस आपको अंदर से मिल सकता है। इम्पॉसिबल सी चीज है। द इम्प्योर कंसाइंस कैन नॉट गिव राइट सजेशंस, द एनिमल कंसाइंस कैन नॉट डायरेक्ट अ पर्सन टू स्पिरिचुअल। हमारा जो प्राणी के लेवल का ना अंतरात्मा है, उसके ऊपर इतने पर्दे हैं, वो कहाँ से आपको स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ लेके जा सकता है। One's reasons and intellectual convictions are tremendously influenced by one's subconscious and unconscious mind. जो भी हमें अंदाजा आता है इस सृष्टि का या नॉलेज का, उसके ऊपर हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस का इतना प्रभाव रहता है कि हम उसके बाहर जाके नहीं सोच सकते। हमारे अंदर की इम्प्योरिटीज उस कंसाइंस का हिस्सा है, तो हमें साफ साफ कैसे नजर आएगा। The intellect, the intellect in most cases acts as a mere tool in the hands of buried instincts and desires. So actually रन कर रहे हैं buried instincts and desires। हमारी जो बुद्धि है वो बस एक माध्यम है जिसके आधार पे हमारे अंदर का जो सबकॉन्शियस है वो रिफ्लेक्ट होता है। The conscience of the individual speaks in accordance with his tendencies, proclivities, inclinations, education, habits, passions and the society in which he is placed। यानी completely influenced अंडरस्टैंडिंग से हम अंदाजा लेते हैं। हमारा कंसाइंस उसी लेवल से बात करेगा, उसके ऊपर इतने सारे संस्कार हो गए हैं। फिर उसी ये क्लाउडेड ना मानसिकता से ही हम अंदाजा बांध सकते हैं। इसीलिए एक्सटर्नल गुरु चाहिए जिसके बुद्धि के ऊपर से सारे पर्दे उठ गए हैं, जो स्पष्ट देख सकता है। उसकी सहारे ही हम आगे का रास्ता तय कर सकते हैं। The sense of duty ingrained in a clerk, a car driver, a scavenger, a collector and a king is not the same. There are 10 different consciences brought up in 10 different conditions. Virochana, thought for himself, took guidance from him, inquired for himself and conclusion that the body is the ultimate self. ये विरोचन एक योगी की कथा कि जो अपने आप से डिपेंड करता था स्पिरिचुअल क्वेस्ट के लिए, इतना जाके उसको यही समझ में है कि शायद बॉडी है मैं हूं, क्योंकि बुद्धि इससे ज्यादा सोचने नहीं देती। It should be remembered that the consciousness is entangled in direction of sense and ego and not towards higher knowledge. A complete surrender of personality to the guru who is the highest realization avoids pitfalls on the path of sadhana and takes the aspirant safely to the light that shines beyond the darkness of samsara. So
आप गुरु को अप्रोच होते हो, सरेंडर करते हो, जिसकी पर्सनालिटी परफेक्ट हो गई है, तो वो आपको बिल्कुल जैसे सुरक्षित इस माया से, इस संसार से निकाल सकता है, आपको आत्म ज्ञान की तरफ लेके जा सकता है. Those who teach the theory that a guru is not necessary, each one should follow one's own conscience, forget the ostensible fact that they themselves take on themselves the role of the guru to those whom they teach the doctrine. ऐसे भी आधे कच्चे गुरु बैठे यहाँ पे जो खुद तो सेल्फ रियलाइज नहीं है, लेकिन 10 लोगों को ज्ञान बांटने के लिए बैठ जाते हैं, खुद परिपक्व. इसके लिए बहुत अच्छी टर्म रामकृष्ण परमहंस ने लिखी थी कि एक अंधा दूसरे अंधे को लेके जा रहा है आगे, दोनों ही गिरेंगे खड्डे में. तो आजकल है, और ऐसे आधे कच्चे गुरुओं से और आधे कच्चे लोगों से बचना भी जरूरी है. They begin to command respect, adoration and worship as great teachers. Though they teach that there is no need for a teacher, we know how the Buddha, for example, asked his disciple to think for themselves rationally and convince themselves for themselves in regard to the validity of the doctrines that he is preaching, and not to accept anything by mere authority of his words. ये humbleness आ जाता है जब आप बुद्ध हो जाते हो. तो आपकी लाइन आखिरी लाइन नहीं होती है, वो भी अपने कहते हैं इतने झुक के वो बोलते हैं अपने डिसाइपल से कि मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए आप पूरी तरह से मानने की जरूरत नहीं है. और ये गुरुजी ने भी बार बार कहा है कि आई एम गिविंग यू व्हाट आई फील राइट, यू पुट इट हियर. आप आपके दिल में रखो. अगर वो लगता है आपको यहाँ पे खिल रहा है, यहाँ पे ना जैसे ना उग रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है, तो वो आपका है. समझो मेरा दिया हुआ ज्ञान आपको लगे कि नहीं ये मेरे से मैच नहीं कर रहा है, आप डिस्कार्ड कर दो, कोई बात नहीं, वो आपके लिए नहीं था. तो जब एनलाइटेंड गुरु होता है ना, वो कुछ थोपता नहीं है, वो कुछ मनवाने के लिए नहीं बैठता है, वो बस देता है और आपको छोड़ देता है कि वो स्वीकार करना है या फेंक देना है. He did not profound the worship of any god. बुद्धा ने किसी भगवान की भी वर्शिप प्रचलित नहीं की. However, the result has been that he is being worshipped as a great guru and even a god. और आयरनी देखिए, वही भगवान बन गए, उन्हीं की भक्ति और ना पूजा शुरू हो गई. The teaching in regard to thinking of oneself and the denial of a need of a guru naturally implies the acceptance on the part of the taught for the person who teaches as a guru. It is found that the need for a guru cannot be overcome in any walk of life. आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, आपको गुरु की जरूरत पड़ेगी. It is the nature of human experience to get affected by a process of subject-object interaction. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन यानी अगर कोई दूसरा समझा रहा है ना, तो हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आता है, या फिर कोई कोई पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं. इसीलिए गुरु का होना या किसी टीचर का होना ये आवश्यक होता है. There is a feeling among some people in the West that the dependence of the disciple on the guru is a psychological bondage which according to the theory of psychoanalysis has to be got over. ये वेस्टर्न व्यूज है कि डिपेंडेंसी क्यों चाहिए, आप और मैं सेम है, मनुष्य है, जो आप में वो मुझ में है, तो मैं आपके ऊपर क्यों अवलंबन रहूं, और ये डिपेंडेंसी नहीं चाहिए. वहां पे स्वामी जी बता रहे कि गुरु पे आप डिपेंड नहीं होते हैं, गुरु कभी डिपेंड नहीं होने देता है. जैसे आपने गुरुजी नौशीर को देखा होगा, वो कभी आपको डिपेंड नहीं होने देते. वो बोलते हैं कि आपकी समस्या है, आप आओ, मैं आपको उपाय बताऊंगा, आपको आपका उपाय करना है. He never promises that he will sort out all the problems for you. He will take care of your life for you. अगर वो ऐसा करते तो हम डिपेंड बन जाते, हर बार उनकी तरफ भागते. इसीलिए उन्होंने हमें स्वयं पूर्ण करने के लिए इतने सारे टूल्स सिखाए हैं. वो एडवाइस देते, लेकिन करने के लिए हमें ही प्रवृत्त करते, हमें ही प्रोत्साहित करते हैं. तो अगर सच्चा गुरु है, वो कभी डिपेंडेंट नहीं रखेगा आपको कि ठीक है मैं कर देता हूँ, पैसे रखो, आप फिर मैं हूं ना, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है. गुरु बोलेगा मैं हूं ना, लेकिन ये करो, फिर मैं, वो अपने हमारे कर्म हमसे ही करवाएगा.
वो हमें आश्रित या ना वीक बना के नहीं रखेगा, कमजोर बना के नहीं रखेगा, नहीं तो उसका पूरा एफर्ट ही मिट्टी में मिल जाएगा। अगर वो हमें भगवान तक की लेवल को ऊंचा उठाना चाहता है, तो अगर वो हमें वीक रखे तो ये कॉन्ट्रास्टिंग नहीं हो गया? हमारे अंदर की क्षमता को बाहर लाना उसका काम है, हमें अपना खुद में विश्वास बढ़ाना उसका काम है। अगर हमें डिपेंडेंट रख दिया तो उसके काम को ही फिर अर्थ नहीं रह जाता। तो इसलिए जो लोग सच्चा गुरु चाहते हैं, दे बेटर बी रेडी कि यहाँ पे कम से कम तदेकम में तो ऐसा गुरु नहीं बैठा है जो आपके हर काम कर दे और आपके हर चिंता हर ले। वो आपको सक्षम बनाएगा कि आप आपकी लाइफ ब्रेवली फेस कर सको। वो आपको पीछे से ताकत देगा ताकि आपकी आप समस्या आप खुद सामना करके हल कर सको। तो इसीलिए स्वामी जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिपेंडेंसी गुरु, सच्चा गुरु कभी डेवलप नहीं करने देता है। सो इट इज ट्रू दैट याज्ञवल्क्य डिस्कनेक्टेड हिमसेल्फ फ्रॉम वैशंपायन, not because he was not loyal to his guru, because the guru was enraged at him and asked him to quit his ashram after returning to him whatever knowledge he had imparted. This of course created in Yajnavalkya a distrust towards all human gurus, but he did not give up his search for a guru. Instead of feeling that for having a guru, that one can proceed for oneself independently along the spiritual path, कभी कभी ऐसे होता है हमारे जीवन में कि से शायद हमें बाहर निकलना पड़े, रीजन चाहे कुछ भी हो, शायद अब वहां कुछ आपको नहीं मिल रहा है, आप एक ही जगह पे फंस गए हो, या गुरु बार बार आपको बोल रहा है कि उसने सब कुछ आपको दे दिया है, या फिर वहां पे जो गतिविधियां होती है, वहां पे जो आचरण होता है, वो आपको कहीं ना कहीं वो हजम नहीं हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि वो ना प्रिंसिपल्स तोड़े जा रहे हैं या फिर दिखावा है। तो ऐसी हालत में गुरु बदलने की कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। बट ऑप्ट फॉर अ सुपीरियर गुरु, यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि जिस गुरु को छोड़ा है उससे बेहतर गुरु को आपको स्वीकार करना है, फिर नीचे नहीं जाना है। द सन गॉड हिमसेल्फ, सो याज्ञवल्क्य चोज sun or the Surya as his guru. There is no argument whatsoever in the behavior of Yajnavalkya which can establish or demonstrate the undesirability of dedicating oneself to a guru. तो लोग कभी कभी ना मिस कोट कर देते कि याज्ञवल्क्य ने तो रिजेक्ट कर दिया गुरु को। नहीं, उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, कुछ चीजें डेवलप हुई तो उन्होंने सुपीरियर गुरु को स्वीकार कर लिया। So he acquired fresh knowledge from sun god. He was ready to impart to the other disciples of his previous guru at the request of the latter, who is said to have been highly pleased later on and tremendous strength and aspiration and courage which Yajnavalkya revealed in revealed from sun god. So ऐसे बोला जाता है कि याज्ञवल्क्य ने बाद में अपने पिछले वाले गुरु के डिसाइपल्स को गाइड किया उनके रिक्वेस्ट पे। तो यहाँ पे ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं, लेकिन उसका सही अर्थ निकालना बहुत जरूरी है। आखिरी में शिवानंद जी ने बिल्कुल ना जैसे ना हृदय खोल के हमें ये ज्ञान दिया है। द हाईएस्ट गुरु इज गॉड हिमसेल्फ, हु रिवील्स हिमसेल्फ इन मेनी फोल्ड फॉर्म्स थ्रू नेचर। द यूनिवर्स in which we live is a greatest teacher of the lessons of life. Every event that occurs before our eyes presents itself before us as a deep lesson with deep significance in it. अभी के सिचुएशन में तो ये बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है कि नेचर इज द बिगेस्ट टीचर। जो भी होता है आपके जीवन में, वहां पे भी कुछ ना कुछ सीख है। तो भगवान ने हर जगह आपको सीखने की व्यवस्था की हुई है। over which no individual seem to have any control. जो सीखना है वो सीखना ही पड़ता है, वो आ ही जाता है लाइफ में। But when this evolution becomes a part and parcel of one's consciousness and is assimilated into one's consciousness, it is called process of yoga. जब ये सीखने की जो ना प्रक्रिया है वो अवेयरनेस से बन जाती है, तब
वो योगा ऑफ यूनियन बन जाता है। हम अंधे बन के भी बहुत सीखते हैं, जब कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है, गिरते पड़ते हैं, लेकिन अंतरात्मा सीखती रहती है। जिस दिन आपको लगे कि मैं एक्टिवली सीख रहा हूँ मेरे जीवन से, मेरे आसपास के लोगों से, मेरे लाइफ में हो रहे हर घटना से, उस दिन आपकी रियल प्रोसेस ऑफ योगा शुरू होगी। योगा है ना यूनियन विद गॉड, आप उस रास्ते पे सच में सीरियसली चल दिए हो। योगा इज रियली द कॉस्मिक इवोल्यूशन by the human consciousness in its own self and with which it has identified its own being। जैसे आप जाग जाते हो, आपका न अंतरात्मा ही आपको जगा रहा है और यहाँ से आगे का प्रवास आपसे वही करवाएगा। It may also be said to be a compression as it were of the whole scheme of the cosmic process in human consciousness। जैसे पूरे विश्व का नॉलेज दिया है। The surrender of the will of God or the law of the Supreme becomes so complete that all apparent conflict that is seen to exist between the operation of nature and ambition of the man vanishes together। इसका मतलब है जब आप ये नेचर को समझने लगते हो, आप सृष्टि को समझने लगते हो, आप जब भगवान के इस तरीके को समझने लगते हो, और जब आपकी इच्छा भगवान की इच्छा दोनों एक हो जाते हैं, सही मायने में आप एनलाइटन की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पे कन्फ्लिक्ट नहीं रहती, जहाँ पे आपको कुछ और चाहिए और भगवान कुछ और देना चाह रहा है। अभी हम सारे इस कन्फ्लिक्ट में जीते हैं और इसीलिए हम दुख पाते हैं, क्योंकि हम भगवान की मर्जी क्या है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हम छोटे बच्चे की तरह जिद पे अड़े हैं, तो हम दुखी दुख झेलते हैं। जिस दिन आप हार्मनी में जीना सीख जाते हो लाइफ से, that is the process of blossoming and walking towards enlightenment। Personal guru is a preparation for and is one of the steps leading to the final absorption of the individual in the universe। जब आप ऐसे अवेयरनेस से गुजरते हो, तब जाके और उसको सरेंडर करने के बाद फिर आप वो गुरु की जिम्मेदारी बन जाती है कि कैसे आपका कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एक हो जाए। There are various stages in the development of the concept of the guru and in the manner in which one surrenders oneself to the guru। हम डिसाइपल के तौर पे भी हम प्रगति करते रहते हैं। इनिशियली हम ना सीखते हैं कैसे डिसाइपल होना है, जैसे जैसे हम बेहतर बनते जाते हैं वैसे वैसे हमारी साधना भी रंग लाती जाती है। But in no stage of spiritual sadhana can the need for the guru be overlooked। आप किसी भी स्टेज में हो साधना के, आपको हमेशा गुरु की जरूरत रहेगी, और वो भगवान भेजेगा भी, लेकिन अगर ईगो हुआ तो वो सामने होते हुए भी आपको दिखाई नहीं देगा। For the guru is a name applied to the different degrees in which the absolute manifests itself in the relation to the aspirant and endeavoring to realize in itself। ये लास्ट जो लाइन है वो आपको समझना जरूरी है। हर एक को अपनी क्षमता से गुरु मिलता है, आपके लेवल से गुरु मिलता है, आपके ना स्पिरिचुअल ना मैच्योरिटी के मैचिंग गुरु मिलता है। तो इसीलिए हर एक को अलग अलग गुरु से अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन आपके अंदर की मैच्योरिटी से आप निर्णय लोगे कि यही गुरु है जो मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान दिलवा सकता है। इससे नीचे वाला गुरु वहीं पे आपको एक लिमिट तक आके छोड़ देना पड़ेगा या छूट जाएगा, क्योंकि आत्म स्वरूप का ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, और वो जो दे सकता है वही सच्चा गुरु है। तो गुरु ढूंढने में आप लगोगे तो ये बात जरूर ध्यान रखना। कितने बज रहे हैं? आई थिंक आई एम होल टॉपिक आई कवर्ड द टाइम। अब हम मेडिटेशन और जपा कर लेंगे, नहीं तो ये सारा टाइम मेरी बड़बड़ में ही चला जाएगा। एनीवे द इंट्रोडक्शन टू गुरु है गुरु भक्ति योगा इज कंप्लीट, एंड द नेक्स्ट चैप्टर विल बी प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग द गुरु भक्ति योगा, इट्स 8 लिम्स, उसके 8 जो
मार्ग है गुरु भक्ति योगा के, 8 मार्ग ने 8 रिक्वायरमेंट जो है वो हम अगले गुरुवार को सीखेंगे। यहाँ पे उन्होंने एंड इस तरह से किया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु के श्लोक से उन्होंने एंड किया है। वो बोलते हैं गुरु ब्रह्मा है क्योंकि वो आपके इग्नोरेंट सेल्फ में से एनलाइटन सेल्फ क्रिएट कर रहा है, क्रिएटर है, इसीलिए वो ब्रह्मा है। गुरु विष्णु है क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करता है, इस संसार में आप खो नहीं जाओ, इस माया में आप उलझ नहीं जाओ, इसीलिए वो प्रोटेक्ट करता है, आपका ध्यान रखता है, आपको मदद करता है जैसे विष्णु करते हैं। और वही शिवा है, जैसे शिवा नेगेटिविटी का संहार करते हैं वैसे ही वो आपके अंदर की चित्त वृत्तियों को प्यूरिफाई करते हैं। सो इसीलिए गुरु को इन तीनों से भी ऊपर बिठाया गया है।